Hello, hello, my naughty genius. How are you? Okay. So सुबह से आप लोगों ने क्या क्या शरारत कर ली? खूब सारी शरारत कर ली, राइट? तो अभी हमने शरारत नहीं करनी, अब हमने मस्ती की पाठशाला करनी। ठीक है, बिकॉज आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना है? सी, I was thinking before I start your third chapter of math subject, I would love to do recap class of basic concepts. What I think is that it would help all those students who had missed any concept or who have some doubts or some confusions. So anyways, this class gonna help all of you. ठीक है, तो प्रेरणा मैम ने क्या कहा? प्रेरणा मैम ने कहा कि जो आज हम क्लास करने वाले हैं वो एक रीकैप क्लास है। रीकैप क्लास का मतलब जो हमने पहले कर लिया है उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं उनके लिए तो अच्छा है, इसके अलावा जिन बच्चों को अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत मस्त क्लास होने वाली है। Hello, naughty geniuses. My name is Ginny, and I am from the School of Magic. I don't like musty. I like kids who study. I'm here to ask you few questions, and if you don't get answers before I come next, I am going to make you go whoosh. I hope you know what I mean. Here is your first question, but before the question, let me get my magic wand. I say the magic word. 1, 2, 3. Let's do the magic with Ginny. So, here is your first question. Find the musical instrument that you play by blowing air. And here are your options. Your second question is, which leg belongs to duck? And these are the three options. I hope you get your answers soon. I am coming back soon to find out. Bye bye, naughty kids. So, अगर आपने भी मस्ती करनी है, जिन लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम इसमें बहुत अच्छे से हर कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं? So in this class I am going to cover few things like what does ones, tens and hundred means। ये जो ones, tens और hundred हम लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है? कुछ बच्चों को ये अभी क्लियर नहीं है, एंड आई नो दैट। इसके अलावा जब हम किसी भी नंबर में 10, 100 या 1000 ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 10, 100 और 1000 एंड 1000 इन एनी नंबर, तो कितना इजी हो जाता है प्लस या माइनस करना। ठीक है, इसके अलावा हम नंबर को एक्सपेंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, दीज ऑल बेसिक थिंग्स अगर हम अच्छे से कर लेंगे ना तो दिस वुड हेल्प यू इन योर फ्यूचर टॉपिक। जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें ये सब चीजें आपको हेल्प करने वाली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जब हम कोई चीज स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। वी शुड टेक सम पेपर, कॉपी, पेंसिल, स्लेट, चॉक, एनीथिंग, सो दैट जो हम कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, सो एवरीवन गो गेट योर नोटबुक एंड पेंसिल
और स्लेट एंड चॉक. ठीक है. अब let me just share my screen with you so that we start our class. Okay. So for that you have to give me 2 minutes. Hello again, naughty geniuses. While she takes 2 minutes, I'm here to give you some genius bites for your brain. So, the first one is, how many legs does a spider have? Well, the answer is 8. And second genius bite is, if you freeze water, what do you get? Well, you get ice. See? Isn't it interesting? Bye bye now. Everyone, see, he is my son Kabir and he is another naughty genius like you all. Kabir, say hi to everyone. Hi everyone. Okay, Kabir ने सबको हाय कर दिया. Let's move. ठीक है. So everybody, when we write any number, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, for example, this number is 235. ठीक है, ये एक नंबर है 235. या another number, there is another number that is 347. इन नंबर्स को हमें बोलना कैसे चाहिए? For example, let me adjust this board. Okay, so this is 235, or if it is not clear, you can see on the PPT में भी आप देख सकते हो 235. So जब भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं या लेस करते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी नंबर को हमें पढ़ना कैसे चाहिए. So जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना चाहिए ones, tens and 100. ठीक है, जैसे 5 के ऊपर वंस लिखा है, 3 के ऊपर टेंस लिखा है और 2 के ऊपर h मतलब 100 लिखा है. ठीक है. तो अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट नंबर इज दिस, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आपने वंस, टेंस और 100 लिखा है. तो दिस नंबर इज 235 को हम इकट्ठा बोलेंगे. तो दिस नंबर इज 235. ठीक है. तो व्हेन वी 2 के ऊपर क्या है 100, तो व्हेन वी read this number, we'll read it like 235. Okay, 235. ये है हमारा फर्स्ट नंबर. तो if we talk about second number, and second number is 347. 347. तो 7 के ऊपर वंस है, 4 के ऊपर टेंस है और 3 के ऊपर 100 है. ठीक है. तो अब सेकेंड नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? 300, क्योंकि 3 के ऊपर 100 है, तो हम बोलेंगे 347. विल से टुगेदर 347. दिस इज 347. ओके. सो अगर आप पीपीटी देखें, अगर आप येलो कलर वाले नंबर को देखेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि 3 के ऊपर 100 है, 4 के ऊपर टेंस है और 7 के ऊपर वंस है, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? 347 विल रीड लाइक 47. ठीक है, 47 को इकट्ठा ही बोलेंगे. तो फर्स्ट नंबर इज 235 एंड 347. दिस इज फर्स्ट थिंग कि हमें सारे नंबर आने चाहिए. आने चाहिए मीन्स हमें सारे नंबर बोल के आने चाहिए. किसी भी नंबर को पढ़ने से पहले हमें ऊपर वंस, टेंस और 100 लिख लेना चाहिए. ओके. सो दिस वुड मेक इट इजी टू रीड. ठीक है, इजी हो जाता है पढ़ना. अब ये तो हमने फर्स्ट थिंग सीखी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीखी. ठीक है. अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग सीखने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज वंस, टेंस एंड 100. ये वंस, टेंस और 100 क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे जो रेड में लिखा है
235 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट वंस। अगर हम बोले 5 वंस, 5 वंस का क्या मतलब है? 5 वंस का मतलब है इफ यू हैव 5 pieces of something, if you have 5 toffees, that means 5 ones. If you have 3 toffees, that means 3 ones. If you have 9 chocolates, that means 9 ones. So 1 से लेके 9 नंबर तक वंस के अंदर नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो वंस के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी। वंस के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 10 टेंस में आता है। ठीक है, तो वंस में क्या क्या आता है? 1 से लेके 9 तक नंबर। लेकिन अगर हमने लिखा है कि 5 वंस, यानी कि वंस के नीचे अगर 5 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 पीसेस ऑफ समथिंग, यानी कि 5 पीसेस ऑफ पेंसिल्स, यानी कि मेरे पास 5 पीसेस ऑफ पेंसिल्स हैं। ठीक है, या मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, या मेरे पास 5 आइसक्रीम्स हैं, या मेरे पास 5 नोटबुक्स हैं। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे हम सेकंड नंबर की बात करें, नीचे वंस के नीचे 7 लिखा है, तो 7 का क्या मतलब है? वंस के नीचे पहले 5 लिखा था, तो इसका मतलब था मेरे पास 5 रबड़ हैं, मेरे पास 5 चॉकलेट हैं। इसी तरह अगर 7 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? आई हैव 7 erasers, I have 7 toys, I have 7 blocks, I have 7 story books. तो यानी कि आपके पास 7 नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स हैं। ठीक है, तो वंस तो बहुत इजी है। वंस का मतलब है कि आपके पास जो नंबर लिखा है उतनी चीज है, यानी कि अगर 5 नंबर लिखा है तो आपके पास 5 चौकोपाई हैं। अगर 7 लिखा है तो आपके पास 7 कुछ भी हो सकता है, चौकोपाई, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, बैग, टॉयज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वंस के अंदर लिखने का क्या मतलब है कि आपके पास 5 पीसेस ऑफ समथिंग है। ठीक है, तो अभी हम वंस को एक बार और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ? जो प्रेरणा मैम ने आपको बताया, आपको अभी तक क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो अभी हम फिर से अच्छे से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, हम 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, 5 का और 7 का, क्योंकि वंस के नीचे 5 नंबर है और 7 नंबर है। ठीक है, तो 5 वंस का क्या मतलब है और 7 वंस का क्या मतलब है, हम ये देखने वाले हैं। ओके, 5 वंस मीन्स 5 पीसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के आपके पास 5, कोई भी चीज जो है वो आपके पास 5 नंबर में है, मतलब 5 है। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रेरणा मैम के पास यहाँ पे चना के दाने हैं, चने हैं, तो आई हैव 5 pieces of chana. ठीक है, so 5 ones means you have 5 pieces of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट के आपके पास 5 पीसेस है। आपके पास अगर 5 बिस्किट्स हैं, तो ये 5 आप कहाँ लिखोगे? वंस में लिखोगे, टेंस में लिखोगे, या 100 में लिखोगे? वंस में लिखेंगे। ठीक है, अगर इफ यू हैव 5 if you have 5 chocolates, तो आप इसे वंस में लिखोगे, टेंस में लिखोगे, या 100 में लिखोगे? वंस, टेंस, 100 तो हमें हमेशा कोई भी नंबर
को हमें लिखना ही चाहिए। अगर 2 नंबर है तो वंस और टेंस लिखेंगे, अगर 3 नंबर है तो वंस, टेंस और 100 लिखेंगे, ठीक है। अगर 4 नंबर है तो 1000 तब आएगा, अभी नहीं। अगर मैं बोलूं आपके पास 9 क्लिप्स हैं, जो गर्ल्स यहाँ पे क्लिप्स लगाती है ना, यहाँ पे ऐसे, तो या ओके आपके पास 9 हेयर बैंड है, 9 हेयर बैंड है, तो आप क्या लिखोगे? 9 हेयर बैंड को आप वंस में लिखोगे, टेंस में लिखोगे, 100 में लिखोगे। यू विल राइट इट डाउन अंडर वंस में लिखेंगे। इजी? अब इजी हो गया ना, वेरी गुड। अब हम देखते हैं 7, अगर 7 वंस लिखा है तो इसका क्या मतलब है। 7 वंस का भी सेम मतलब है, बस प्रेरणा मैम ने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। दिस इज क्या है ये, इसे क्या कहते हैं? मुझे तो बहुत यम्मी लगती है, इसे क्या बोलते हैं? डोनट्स। ओके, अगर पापा ने आपको सरप्राइज दिया और आपके लिए पापा 7 पीसेस ऑफ डोनट्स लेके आए, तो आप 7 पीसेस ऑफ डोनट्स को किसके अंदर लिखोगे? वंस के अंदर लिखोगे, टेंस के अंदर लिखोगे, या 100 के अंदर लिखोगे? वंस के अंदर लिखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि वंस के अंदर 1 to 9 तक नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर? एवरीबडी शो मी योर थंब। क्लियर? तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा था 7 वंस मीन्स 7 पीसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के 7 पीसेस। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, 7 टॉफीज भी हो सकती हैं, 7 डोनट्स भी हो सकते हैं, 7 आपकी शर्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से लेके 9 तक अगर हैं तो वो वंस के अंदर आएंगे। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको भी आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव। अभी हमने वंस के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस। टेंस जो है वो वंस से भी ज्यादा इजी है। कैसे? क्योंकि टेंस के लिए प्रेरणा मैम आपको कुछ कराने भी वाली है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो टेंस का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे लिखा है 3 टेंस, अब टेंस को सिखाने के लिए प्रेरणा मैम ने 2 एग्जाम्पल लिए, 3 टेंस और 4 टेंस, ठीक है। अब हम 3 टेंस और 4 टेंस को के बारे में सीखेंगे। ऐसा करते हैं, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर प्रेरणा मैम आपको बताते हैं। सो सी, अगर आपके पास 3 टेंस, टेंस के नीचे 3 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? 3 टेंस मीन्स 3 ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक में 10 पीसेज हैं। फर्स्ट ब्लॉक देखिए, फर्स्ट ब्लॉक में कितने पीसेज हैं? 10, ठीक है। तो आपके पास कोई भी चीज जो 10 के ग्रुप में है, ठीक है, एनीथिंग विच इज इन अ ग्रुप ऑफ 10, वो टेंस के अंदर आती है। यानी कि अगर आपके पास ये ब्लॉक 10, ये 10 पीसेस ऑफ ब्लॉक हैं, ठीक है, तो ऐसे 10 पीसेस ऑफ ब्लॉक कितने हैं आपके पास? 3, 1 2 3, यानी कि आपके पास 3 ब्लॉक्स के ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर 10 पीसेस हैं, ठीक है। आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, ये देखो 3 ब्लॉक्स हैं जिसमें कितने का ग्रुप है? 10 का ग्रुप है। ओके, अभी मैं अच्छे से समझाती हूँ, 1 मोर टाइम। सी नाउ 4 टेंस, अब हम 4 टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। 4 टेंस मीन्स बॉक्सेस ऑफ 10 मैंगोज, यानी कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन हर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 10। जब आपके पास किसी बॉक्स में या किसी बंडल में या किसी पैकेट में 10 का ग्रुप है, तो उसे हम टेंस में डालते हैं, ठीक है। मैं अभी और अच्छे से समझाती हूँ। सी,
अभी हमारे पास एक बॉक्स पड़ा था, मम्मा ने कहा इस बॉक्स में काउंट करो कितने मैंगो हैं, आपने काउंट किया, अरे इस बॉक्स में तो 10 मैंगो हैं, तो यानी कि ये 1/10 है। ठीक है, अब इस बॉक्स में भी कितने मैंगो हैं, 10 मैंगो हैं, तो ये 1 and 2, ये 2/10 हो गए। 10-10 के ग्रुप के आपके पास 2 बॉक्स हो गए, 10 ग्रुप के आपके पास 2 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब इसमें भी 10 मैंगोज हैं, यानी कि 10 ग्रुप के आपके पास 3 बॉक्स हो गए। ओके, यानी कि हर बॉक्स पे 10 चीजें होंगी, तो एवरी बॉक्स विल इंक्लूड 10 ऑब्जेक्ट्स या 10 पीसेस। तो फर्स्ट बॉक्स में 10 पीस है, सेकंड बॉक्स में 10 पीस है, थर्ड बॉक्स में 10 पीस है, फोर्थ बॉक्स में 10 पीस है। तो ऐसे कितने 10s हैं आपके पास, आपके पास 4 10s हैं, यानी कि 4 10s के मतलब क्या है कि इन 4 10s के अंदर 10-10 चीजें हैं, यानी कि 4 बॉक्सेस के अंदर 10-10 चीजें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताती हूँ, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए जब भी आप 10 की बात करते हो ना, तो इसका मतलब 3 10s का क्या मतलब है, आप ऐसे याद कर लो कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स में भी 10 मैंगो है, सेकंड बॉक्स में भी 10 मैंगो है, थर्ड बॉक्स में भी 10 मैंगो। ठीक है, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए हमेशा इजी रहेगा। ठीक है, अगर 4 10s हैं तो 4 10s का मतलब क्या होगा, आपके पास 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 10 मैंगोज हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 10s के नीचे 7 लिखा होगा तो क्या इसका मतलब होगा, इट मीन्स दैट यू हैव 7 बॉक्सेस एंड एवरी बॉक्स इंक्लूड्स 10 मैंगोज। ठीक है, 10s का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज करते हैं, एवरीवन गो एंड गेट 4 बॉल्स, 4 बॉल्स ले आओ। बॉल्स मतलब जो कटोरी होती है ना, कटोरी, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर की कटोरी है तो वो 4 लेके आइए, गो एंड गेट 4 बॉल्स एंड, और थोड़े से चनास ले आइए, फिस्ट फुल ऑफ चना, एक मुट्ठी चना ले आइए। ठीक है, अब हम करके देखते हैं, हमें तब समझ आएगा और अच्छे से। तो आई हैव, सी आई हैव 4 बॉल, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल एंड 4 बॉल। तो अब हम क्या करते हैं, एवरीवन होल्ड 1 बॉल, एक बॉल ले लीजिए, और चना, इस बॉल में हम 10 चना डालेंगे, 1 चना, 2 चना, 3 चना, 4 चना, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने इसमें 10 चना डाल दी, तो ये कितने 10s हो गए, ये 1/10 हुआ, दिस इज 1/10, यानी कि 1 बोल में 10 चना, दिस इज 1/10। ठीक है, क्लियर, एवरीबडी शो मी योर 1/10, दिस इज 1/10, मतलब इस बोल में 1 बोल में 10 चना है। ठीक है, अब हम इसको अभी यहीं रखते हैं, अब हम सेकंड बोल लेंगे, तो इस सेकंड बोल में भी विल पुट 10 चना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें भी हमने 10 चना पीसेस डाल दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो अब ये कितने 10s हो गए, 1/10, 2/10। तो 2/10 का मतलब हुआ कि आपके पास 2 बोल्स हैं जिसके अंदर कितने कितने चना है, 10-10 चना है। 1 बोल में भी 10 चना है, सेकेंड बोल में भी 10 चना है, तो दिस इज 2/10। 2/10 का मतलब you have 2 boxes of 10 object। ठीक है, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ओके,
आप भी ऐसे ही इसे रख लीजिए. नाउ विल टेक थर्ड में भी वी विल पुट 10 चना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें भी 10 है. तो नाउ दीज आर, ये कितने टेंस हो गए? 1 2 3 टेंस हो गए. टेंस का मतलब इन थ्री, ये 3 टेंस का मतलब हुआ इन तीनों बॉल्स में 10 का ग्रुप है. These 3 bowls contain a group of 10 object. चाहे वो चना हो, चाहे वो टॉफी हो, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है. सो 1 10, 2 10, 3 10. 1 10 में कितने चना है? 10. सेकेंड 10 में 10. थर्ड 10 में 10. तो इन तीनों में 10 चना. ठीक है. अगर किसी में मान लो इफ आई हैव वन मोर बोल दैट इज दिस, अगर मैं इसमें 2 चनास डाल दूं तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगा. रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं होगा. तो इसमें भी 10 चनास होने चाहिए. सो आई एम गोइंग टू पुट 10 चनास. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो इसमें भी मैंने 10 चनास डाल दिए. तो आई हैव हाउ मेनी टेंस आई हैव नाउ? आई हैव 1 2 3 4 टेंस हैं. यानी कि आई हैव 4 टेंस. इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 4 ऐसे बॉक्सेस हैं या 4 ऐसे बोल्स हैं जिसके अंदर 10 चीजें हैं, which contains 10 pieces of any object. Clear? I am sure अभी आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब मैंने ये आपको क्यों करके दिखाया? देखिए, वंस का मतलब हमने समझा कि 1 से लेके 9 तक आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब इधर हम जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं वो हम इधर लिखते हैं. टेंस का क्या मतलब है? टेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स. ऊपर जो टेंस लिखा है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स. इधर जो 3 लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, 7 लिखा है, दैट मीन्स यू हैव 3 बॉक्सेस जिसमें 10 का ग्रुप है. 3 बॉक्सेस में 10 थिंग्स हैं. तो इन 4 बॉक्सेस में 10 थिंग्स हैं. ठीक है. तो ये मैंने क्या दिया आपको? एक एग्जाम्पल दिया सो दैट थिंग्स गेट क्लियर. आई एम श्योर अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब इफ वी टॉक अबाउट 100, अभी हमने वंस पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया. नाउ विल टॉक अबाउट हंड्रेड्स. अब हम 100 के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट डज 100 मीन्स? 100 मीन्स कि आपके पास सेम जैसे हमने 10 में किया था, जैसे 10 में 10 का ग्रुप होता था यानी कि 10 ऑब्जेक्ट्स होते थे, 100 में 100 ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसमें 100 ऑब्जेक्ट्स होते हैं? छोटी छोटी चीजें. फॉर एग्जाम्पल 100 क्लिप्स का पैकेट आता है, 100 टॉफीज का पैकेट आता है, 100 वो जो रबर बैंड्स होते हैं उनका भी पैकेट आता है ना. तो ऐसी क्या चीजें हैं कि जो हंड्रेड्स के अंदर आती हैं? बहुत सी चीजें होती हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ 100 के नीचे कौन से 2 नंबर्स लिखे हैं? 2 and 3. सो अभी हम 100 के 2 और 3 का एग्जाम्पल लेंगे. ओके. सो लेट्स फाइंड आउट. सो 200 means group of 100 pieces. जैसे फर्स्ट, इसको भी अगर आप ऐसे याद कर लोगे कि आपके पास 1 बॉक्स है जिसमें 100 मैंगोज हैं. दीज आर 100 ब्लॉक्स. 100 ब्लॉक का एक पीस है ये. ठीक है. और ये 100 ब्लॉक का 2 पीस है, सेकेंड पीस है. ठीक है. यानी कि 100 ब्लॉक्स के यहाँ पे कितने पीसेस हैं? 2 पीसेस है.
तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बॉक्स और 100 वाली बात जो प्रेरणा मैम ने कहा था, आप ऐसे याद कर लो कि आपके पास बॉक्सेस हैं 200, मतलब आपके पास 2 बॉक्सेस हैं जिसमें पहले तो 10 में 10 मैंगोज होते थे, लेकिन अभी कितने मैंगोज हैं? 100 मैंगोज हैं। अगर आप ये याद नहीं कर सकते कि कितने ब्लॉक्स हैं, इसको कैसे समझे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन याद रख लो हमेशा के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम कोई चीज नई लर्न करते हैं ना, तो हमें उसे ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए प्रेरणा मैम ने आपको एक लाइन याद करने के लिए दी। जैसे जैसे आप इसको याद करके रखोगे, धीरे 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 आपको सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तब आपको लाइन्स याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यू नीड नॉट टू लर्न एनी लाइन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी जब नई चीज है तो उसे समझने के लिए we can take that reference. Okay, so now हमने क्या बोला था, हम 2 और 3 का एग्जाम्पल। अगर 300 है, 100 के नीचे 3 लिखा है, तो यानी कि आपके पास 3 ऐसे बॉक्स हैं जिसमें 100 पीसेज ऑफ समथिंग है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे आपके पास 1 2 3 एक्वेरियम है जिसमें 100 फिशेज हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि अभी आपको चीजें समझ आ गई, द मीनिंग ऑफ वंस, टेंस एंड 100। ठीक है, समझ आ गया? सो नाउ लेट्स मूव। अभी हमने वंस, टेंस और 100 को बहुत अच्छे से सीख लिया कि अभी अगर ऐसे लिखा होगा, अब हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई नंबर लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है। और वंस, टेंस, 100 लिखने से हमारे लिए बहुत इजी होता है। अगर ये नंबर लिखा है 235, इसको हम बोलेंगे कैसे? हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे दिस इज 235, नो। 100 के नीचे क्या है? 2, तो हम बोलेंगे 235। 100 के नीचे क्या है? 3, तो ये कौन सा नंबर है? सेकेंड नंबर, 347। क्लियर? क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट नंबर, अगर मैंने एक नंबर लिखा है दैट इज 635, कैन यू रीड दिस नंबर? और रीड करने के बाद कैन यू राइट दिस नंबर? आप लिख सकते हो, दिस इज 635। जैसे ही हमें कोई कहता है कि इस नंबर को रीड करके दिखाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? वंस, टेंस और 100 लिख लेना चाहिए। तो यानी कि 100 के नीचे जो नंबर है उसे हम बोलेंगे 600, 35 विल से 35। ठीक है, तो दिस इज 635, दिस इज 928। ये नंबर लिखे। इसे हम कैसे रीड करेंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें इसे लिखना है तो हाउ विल वी राइट? वी विल राइट 900 के नीचे लिखा है, तो विल से 928, तो वी विल राइट 928। ओके, क्लियर? लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। ऐड कैसे करते हैं? सो वंस के नीचे लिखा है 5 और 7, तो हम वंस के नीचे लिखे हुए नंबरों को पहले प्लस करेंगे। तो हमने ऐड करना है ना, तो ऐड कैसे करेंगे? 5 और 7 को ऐड कैसे करते हैं? तो अब क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम फिंगर्स में काउंट कर लें, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम ऐसे लाइंस डालेंगे। तब जब हम छोटे थे तब हम लाइंस डालते, नाउ वी आर इन 3rd स्टैंडर्ड, तो हम थोड़ी स्मार्टली काम करेंगे। इनमें से जो भी बिग नंबर होता है उसको वी विल पुट इट इन आवर टंग, हम उसे टंग पे रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच नंबर इज बिगर? 7। ठीक है, 7 को हमने टंग पे रख दिया। ठीक है, टंग पे रखने का मतलब, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, रीना मैम आपको बहुत इजी तरीके सिखा रही है। ओके, 7 को हमने टंग पे रख दिया, 5 को हम फिंगर पे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। कोई भी नंबर जो छोटा है उसे हम फिंगर पे काउंट करेंगे
और जो बड़ा नंबर है उसे हम टंग पे रख देंगे। अब हम कैसे इसे ऐड करेंगे? जो हमने टंग पे रखा था वो नंबर क्या था? 7। 7 के आगे हम काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 5 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आता है? 12। लेकिन 12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वंस के नीचे सिर्फ 1 वाले नंबर आते हैं, टेंस के नीचे सिर्फ टेंस के नंबर आने चाहिए। तो 12 में भी 2 जो है वो वंस है और 1 क्या है? टेंस है। ठीक है, सो अगर हम टॉफी का एग्जाम्पल लें तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास वंस वाली जगह हमने 2 लिखा है तो इसका मतलब है क्या है? मेरे पास 2 टॉफी है। टेंस के नीचे अगर 1 लिखा है तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास 1 बॉक्स है जिसमें कितनी टॉफीज हैं? 10 टॉफीज हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, अब हमने क्या करना है? वंस के नीचे 1 लिखना है, तो इसमें से 2 वंस के नीचे लिखेंगे, लेकिन टेंस के नीचे तो 1 है, इसको क्या करेंगे? वी विल कैरी ओवर 1 टू दी टेंस। हम 1 को टेंस के पास ले जाएंगे, बिकॉज 1 जो है वो टेंस के नीचे लिखा है, तो उसे हम बोलते हैं कैरी ओवर। कैरी ओवर मतलब हम आगे ले जाते हैं, तो 1 से आगे क्या लिखा है? टेंस। तो सी, हम टेंस के पास यहां हम छोटा सा 1 लिख देंगे। ओके, नाउ वी विल प्लस ऑल दीज 3 नंबर। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 4। ठीक है, 4। छोटा नंबर कौन सा है? 3। 4, 5, 6, 7 एंड 1, 8। तो ये हमने प्लस किया तो 8 आ गया। क्लियर? ओके, नाउ 3 plus 2, 3, 4, 5. So now see, this is something new. न्यू मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने वंस, टेंस और 100 को सीखा कैसे करते हैं। उसके बाद हमने कैरी ओवर का क्या मतलब होता है उसे सीखा। ठीक है, सीख चिल्ड्रन, अगर हम आज की क्लास को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करेंगी। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी चीज मुश्किल नहीं। अभी हमने क्या करना है? अभी प्रेरणा मैम आपको बताती हैं कि किसी भी नंबर में 10 को ऐड करना, 100 को ऐड करना और 1000 को ऐड करना बहुत इजी होता है। कैसे? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, किसी भी नंबर में 10 को ऐड करना, 100 को ऐड करना और 1000 को ऐड करना बहुत इजी होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो हम सिर्फ 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 में 10 ऐड किए 20, 20 में 10 ऐड किए 30, 30 में 10 ऐड किए 40, 40 में 10 ऐड किए 50 में 10 ऐड किए 60 में 10 ऐड किए 70 में 10 ऐड किए 80 में 10 ऐड किए 90 एंड 90 में 10 ऐड किए 100। वंडरफुल। तो ये तो बहुत इजी था। ठीक है, जैसे हमने 10 में 10 10 10 10 ऐड किए तो ये तो बहुत इजी था। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको हर नंबर में 10 ऐड करना है। प्रेरणा मैम आपको 1 में 10 ऐड करके बताएगी और 6 में 10 ऐड करके बताएगी और 8 में 10 ऐड करके बताएगी। 2 में, ठीक है, 2 में राइट डाउन आपको किस में करना है? 2 का, 3 का, 4 का, 5, 7 एंड 9। 6 नंबर्स में 10 ऐड करके आपको मुझे दिखाना है। अब 10 ऐड करने का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? तो देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ
सी आपको ये करना है, अगर आप करोगे ना इट वुड बी फन टू डू दिस, ये करने में बहुत मजा आएगा आपको। जैसे प्रेरणा मैम ने लिखा 1 नंबर, 1 में 10 ऐड किया 11, 11 में 10 ऐड किया 21, 21 में 10 ऐड किया 31, 31 में 10 ऐड किया 41, 41 में 10 ऐड किया 51, 51 में 10 ऐड किया 61, 61 में 10 ऐड किया 71, 71 में 10 ऐड किया 81, 81 में 10 ऐड किया 91। ठीक है, 91 तक हमने ऐड किया। ठीक है, तो कितना इजी हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 में 10 ऐड करेंगे। 2 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, 12 में 10 ऐड किया 22, 22 में 10 ऐड किया 32, 32 में 10 ऐड किया 42, 42 में 10 ऐड किया 52, 52 में 10 ऐड किया 62, 62 में 10 ऐड किया 72, 72 में 10 ऐड किया 82, 82 में 10 ऐड किया 92। हाउ इजी दिस इज, कितना फन है और कितना इजी है। हर नंबर में यानी कि 1 में 10 10 ऐड करना है, फिर 2 में 10 10 ऐड करना है, फिर 3 में 10 10 ऐड करना है, 6 में 10 10 ऐड करना है, और इस तरह से 10 तक आपको ये सारा बनाना। जैसे प्रेरणा मैम ने ये पूरा चार्ट बनाया ना, ऐसा चार्ट बनाना आप। ठीक है, आप देखोगे अगर आपने ये चार्ट अपने आप समझ के बनाया, और मम्मा ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि मेरे बेबी ने चार्ट बनाया अपने आप बिना मिस्टेक के, तो सी कितना मजा आने वाला है प्रेरणा मैम को। ठीक है, प्रेरणा मैम को क्यों मजा आएगा, क्योंकि प्रेरणा मैम जो आपको समझा रही है वो आपको समझ आया, और जब आप ये खुद बनाएंगे और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आप सोचो आपके मैथ्स के जितने भी लेसन हैं उन सब को समझने में it would be very easy for you, right? Expand the number. This is also very funny. Funny means बड़ा मजेदार होता है ये करना, ये भी बहुत मजेदार होता है। आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अच्छा नहीं होता। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ आने लगे तो वो उसी समय अच्छा लगने लगता है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा लगे इसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड दी नंबर। एक्सपेंड दी नंबर सिखाने से पहले प्रेरणा मैम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं, जो आपको हमेशा याद रहेगी कि अगर हम 1 लिखें या हम 01 लिखें तो एक ही बात होती है, ये यानी कि ऐसा भी 1 लिख सकते हैं और 01 भी 1 लिख सकते हैं। अगर हम 2 लिखें या 02 लिखें तो इसमें कहीं मिस्टेक नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम 3 लिखें और 03 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम नंबर के पीछे 0 लगाते हैं, यानी कि अगर हम 1 के पीछे 0 लगा रहे हैं तब तो वो 10 हो गया। तो 1 और 10 इक्वल थोड़ी ना है, नो 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 नो। ठीक है, अगर हम 2 के पीछे 0 लगा रहे हैं तो 2 और 20 को इक्वल थोड़ी ना है, नो, है ना, गलत हो गया ना। तो अगर हम 2 के आगे 0 लगा रहे हैं तो इट मीन्स ये 2 ही लिखा है। अब प्रेरणा मैम ने आपको ये क्यों समझाया, प्रेरणा मैम ने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम 2 डिजिट का नंबर ऐड करते हैं, मान लो हमने 35 में ऐड करना है 1 डिजिट का नंबर, सिर्फ एक डिजिट को ऐड करना है, मान लो लाइक 3 ऐड करना है, तो 3 के आगे कुछ नहीं होता ना, तो हमें थोड़ा सा कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर हम 3 के आगे कुछ नहीं, अगर 0 लगा देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसके नीचे भी कोई नंबर है, इसके नीचे भी कोई नंबर है, जीरो का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं है इधर। जब किसी नंबर के आगे जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी नंबर के पीछे जीरो है तब वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आज ये हमने वन मोर न्यू बात सीखी। ठीक है, अब हम एक्सपेंड दी नंबर कर रहे हैं। एक्सपेंड दी नंबर क्या होता है? 24 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, इसका मतलब 24 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे 20 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 + 4 24। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 + 2 लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ हम 57 को कैसे लिख सकते हैं अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है? तो अगर 57 है तो हम इसे 50 + 7 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? अगर 82 है तो हम इसे 80 + 2 लिख सकते हैं। ओके, अगर ये 39 है तो इसे हम 30 + 9 लिख सकते हैं। बस क्या फर्क है, इसे हमने एक्सपेंड करके लिखा है, यानी कि थोड़ा सा खोल के लिखा है। ठीक है, ओके, सो नाउ 49 को कैसे लिख सकते हैं? 40 + 9। 86 को कैसे लिख सकते हैं? 80 + 6। 95 को कैसे लिख सकते हैं? 90 + 5। ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 + 4 24 होता है, 30 + 2 32 होता है, 40 + 9 49 होता है, 80 + 6 86 होता है, 90 + 5 95 होता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। सिमिलरली 100 के साथ भी होता है। अगर लिखा हुआ है, देखो प्रेरणा मैम ने क्या बताया था, 1 के ऊपर 100 होता है, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं, तो 06 का मतलब 6 ही होता है, 106। इसको हम 100 + 6 लिख सकते हैं। 112, इसे हम 100 + 12 लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। 137, इसे हम 100 + 37 लिख सकते हैं। 224, इसे हम 200 + 24 लिख सकते हैं। 559 को हम 500 + 59 लिख सकते हैं। अगर हमको ऐसे दे दिया 100 + 12, इसको नंबर में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे? 112। यानी कभी कभी हमें नंबर को एक्सपेंड करना है, कभी कभी हमने एक्सपेंड नंबर को नंबर जैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें वो हमें हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट कम टू द मेन स्क्रीन। ओके, सो आज हमने कितना मजा किया। आज हमने जो भी क्लास करी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना? होने चाहिए ना। तो आज हमने क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे किए ना, तो बहुत सारा टाइम लगा जैसे हमने बहुत सारी पढ़ाई करी। लेकिन आप एक एक टॉपिक को थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान से समझ लोगे तो आपके लिए मैथ्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे विच इज गिव एंड टेक। ठीक है, सो गिव एंड टेक में अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए होंगे ना, तो आपको ये 3rd चैप्टर करने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो आई एम श्योर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये हेल्पफुल रही तो आपको मुझे बताना होगा, सो दैट कोई भी चैप्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि उस चैप्टर को बताने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, so I would definitely make a video on recap concepts. ठीक है, हम recap के लिए एक क्लास जरूर बनाया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3rd चैप्टर के लिए मैंने एक recap क्लास बनाई, सो दैट कि हम पिछले सारे ऑलमोस्ट सारे चीजों को एक बार से फिर से क्लियर कर लें। ठीक है, so I'm sure this class would be helpful.
ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो नॉटी जीनियस हैं वो अच्छे बच्चे बन के धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए विल से बाय बाय। सो आपने 1 आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने 10 ऐड करने, जब सब नंबर्स में 10 ऐड किया तो क्या आपने सही से किया, ठीक है। आप मुझे बताओगे सो दैट मुझे समझ आए कि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए से बाय बाय।